हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। श्री गणेश, राधे राधे, हरे कृष्ण। आप देख रहे हैं एडवोकेसी विद एनके। आई एम एडवोकेट एनके वर्मा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। हमने विभिन्न सेक्शंस आईपीसी के बारे में पढ़ा था। यह हमारी मिशन एआईबी सीरीज की फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम एआईबी 9th के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि एआईबी 2020 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एआईबी जो कि 16 अगस्त को होने वाली है। आज हम एआईबी 9th के सेट ए का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। सारे क्वेश्चन पेपर सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी के एक ही होते हैं, सिर्फ उनके सीरियल नंबर अलग अलग होते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। 1. State practice for the formation of customary rule includes 1. State action, 2. State claims। इसके ऑप्शंस हैं only 1, B only 2, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2। इसके ऑप्शन C सही हैं, जिसमें both 1 and 2 लिखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2, the controller of certifying authorities in India must maintain a database of the disclosure records of first certifying authority, second cross certifying authority, third foreign certifying authority। इसके ये ऑप्शन सही हैं, जो कि 1 and 2 दिया गया है। बी, सी और डी इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर सेक्शन 37 ऑफ द IT Act 2000, the certifying authority can suspend the digital signature certificates if the subscriber is found guilty of malpractice. 2. The subscriber is involved in cyber terrorism. 3. The subscriber requests for the same. 4. In public interest। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। A 1 and 2, B 2 and 3, C 3 and 4, D 4 and 1। इसके C ऑप्शन सही है, जिसमें 3 and 4 लिखा गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन द केसेज बिफोर साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल द अपीलेंट A cannot appear in personal without a legal practitioner, B cannot authorize a legal practitioner to appear on his behalf, cannot authorize his officer to appear on his behalf, cannot authorize his relative who is neither his officer nor a legal practitioner to appear on his behalf। इसके डी ऑप्शन सही हैं। cannot authorize his relative who is neither his officer nor a legal practitioner to appear on his behalf। 5वां क्वेश्चन है, इन दी लाइट ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 which of the following statement is are correct? A, the word the rape in section 375 of Indian Penal Code 1860 has been replaced with sexual assault. B, rape is now a gender neutral offence. C, the amendment has fixed the age of consensual sex as 16, all the above। इसमें क्वेश्चन गलत है और इसमें सारे लोगों को ग्रेस दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, the offence on stacking upon second or subsequent conviction is। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, सी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, डी नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। इसके ऑप्शन सी सही हैं, जिसमें लिखा गया है कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। क्वेश्चन नंबर 7, इन किडनैपिंग दी
consent of minor is A. wholly immaterial, B. partly immaterial, C. wholly material, D. partly material. इसके ऑप्शन ए इज सही है, wholly immaterial. अब क्वेश्चन नंबर 8, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एनी पर्सन हु हैज अटेंड द एज ऑफ, यहाँ ब्लैंक को भरना है, मे बी मेंबर ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन सब्जेक्ट टू एनी रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन टू द कॉन्ट्रेरी. इसमें ऑप्शंस में ए में दिया गया 14 ईयर्स, बी में 15 ईयर्स, सी में 18 ईयर्स, डी में 21 ईयर्स. इसका सी ऑप्शन सही है जिसमें 18 ईयर्स, यहाँ ब्लैंक में 18 ईयर्स भरा जाएगा. अब क्वेश्चन 9 पे हम आते हैं. स्पूरियस गुड्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 imply A. such goods and services which are of poor quality. Such goods and services which are claimed to be genuine but they are actually not so. C. such goods and services which might be stolen in nature. D. such goods and services which are not usable in nature. इसके ऑप्शन बी सही है, such goods and services which are claimed to be genuine but they are actually not so. अब क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आते हैं. Who is liable to pay compensation in case of death or permanent disablement? A. owner of the vehicle, B. state government, C. driver, D. insurance company. इसके ऑप्शन ए सही है जो कि ऑनर ऑफ द व्हीकल लिखा दिया है. अब हम क्वेश्चन 11 पे आते हैं. इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू प्रोसीडिंग्स बिफोर ट्रिब्यूनल, बी प्रोसीडिंग्स बिफोर द आर्बिट्रेटर, सी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट. ऑल दी एबव. इसके सी ऑप्शन सही है, जुडिशियल प्रोसीडिंग इन कोर्ट. अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. फैक्ट इन इशू मीन्स. इसके ऑप्शंस हैं ए. फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज एडमिटेड बाय द पार्टीज, बी फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द विच इज डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज, सी फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज नॉट डिस्प्यूटेड बाय द पार्टी. ऑल दी एबव. इसके ऑप्शन बी सही है जिसमें लिखा गया है फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज. अब क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आते हैं. इन दी इनेबलेबल ऑफेंस बेल इज ग्रांटेड एज ए मैटर ऑफ राइट. इसके ऑप्शंस है बाय द पुलिस ऑफिसर, बाय द कोर्ट, सी बोथ द पुलिस ऑफिसर एंड कोर्ट, डी आइदर ए और बी. इसके ऑप्शन सी सही है जो कि बोथ बाय द पुलिस ऑफिसर एंड द कोर्ट. अब क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आते हैं. द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. बी कैन बी यूज्ड एज एविडेंस only in arbitral proceedings. C can be used as evidence only on the discretion of the judge or arbitrator. D cannot be used as evidence in any judicial arbitral proceedings. इसके डी ऑप्शन सही है, कैनॉट बी यूज्ड एज एविडेंस इन एनी जुडिशियल आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स. अब क्वेश्चन नंबर 15 पे हम आते हैं. द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस. ए
options takes up cases suo motu, B takes up cases for investigation on the basis of application made by the people concerned, C takes up cases of for investigation referred to it by central government, all the above। इसके ऑप्शन सी सही है, टेक्स द केसेज फॉर इन्वेस्टिगेशन रेफर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर जस्टिफाइबल एज फंडामेंटल राइट्स, बी जस्टिफाइबल but not as fundamental rights, C decorative portion of Indian Constitution, D not justifiable it fundamental in the governance of the country। इसके डी ऑप्शन सही है, जिसमें लिखा गया नॉट जस्टिफाइबल इट फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आते हैं। Who has the power to dissolve the Lok Sabha? President, Prime Minister, Speaker of Lok Sabha, Council of Minister। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रेसिडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे हम आते हैं। एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ बिल फॉर सच पर्पसेस इन a council of estates, house of people, either in council of estates or house of people, none of the above। इसके ऑप्शन नंबर सी सही है, either in council of estates or house of people। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। which of the following is a function of Central Pollution Control Board under the provisions of section 16 of the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981? Option A to carry out and sponsor investigation and research relating to problems of pollution and prevention, control और abatement of pollution। इसके ऑप्शंस बी में है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नॉर बी। इसके ऑप्शन बी सही है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फिश बाय यूज ऑफ एक्सप्लोसिव और बाय पॉइजनिंग द वाटर इज प्रोहिबिटेड बाय इंडियन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बी द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, सी इंडियन फिशरीज एक्ट 1897, डी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसके ऑप्शन सी सही हैं, इंडियन फिशरीज एक्ट 1897। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे हम आते हैं। सेक्शन 10 ऑफ द CRPC डज नॉट अप्लाई व्हेन द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग इन द सेम कोर्ट। ऑप्शन बी व्हेन द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग इन ए फॉरेन कोर्ट। ऑप्शन सी व्हेन द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग इन एनी अदर कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी when the previous suit is pending in a court outside India established by the central government। इसके ऑप्शन बी सही है, when the previous suit is pending in a foreign court। हम क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा इज। इसके ऑप्शंस हैं ए मैंडेटरी, बी डायरेक्टरी, सी डिस्क्रेशनरी, डी ऑल द एबव। इसका ऑप्शन ए सही है, मैंडेटरी। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम आते हैं। इंटरनेशनल लॉ इज ए वीक लॉ बिकॉज ए ऑप्शन इट इज नॉट इन्फोर्सेबल एज सच, इट इज नॉट ए लॉ बट ए पॉजिटिव मोरालिटी, बी there is absence of compulsory dispute
settlement mechanism and independent system of sections. C. It only includes states as subject. D. There is no dependable sources available. इसका ऑप्शन बी सही है, जो कि लिखा गया है देयर इज absence of compulsory dispute settlement mechanism and independent system of sections. अब हम क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड टेरिटरीज. ऑप्शंस हैं. फर्स्ट में मून, सेकंड में हाई सीज, डी डीप सी वेड, फोर्थ एंटार्क्टिका. इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 1, 2 एंड 4. बी में दिया गया है 1 एंड 3, सी में दिया गया है 2, 3 एंड 4, डी में दिया गया है 2 एंड 4. इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 एंड 3, यानी मून एंड डीप सी वेड. अब क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. ऑप्शन ए में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. ऑप्शन बी में इंश्योरिंग रेस्पेक्ट फॉर ट्रीटी ऑब्लिगेशन सेक्शन. ऑप्शन सी में है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड. ऑप्शन डी में प्रमोशन ऑफ बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ. इसके ऑप्शन सी सही है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड. हम क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं. द कमिटी दैट लेड टू द पासिंग ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 वाज हेडेड बाय. ऑप्शन ए में है जस्टिस दलवीर भंडारी, बी में जस्टिस अल्तमस कबीर, ऑप्शन सी में है जस्टिस जे.एस. वर्मा, ऑप्शन डी में है जस्टिस जे.एस. आनंद. इसके ऑप्शन सी सही हैं, जस्टिस जे.एस. वर्मा. क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज ट्रू ऑफ प्री-रिचुअल इंजेक्शन. ऑप्शन ए में इट इज जुडिशियल प्रोसेस, बी में प्रिवेंटिव इन नेचर, सी में द थिंग प्रिवेंटेड इज ए रॉन्गफुल एक्ट, ऑल द एबव. अब इसके ऑप्शन बी सही हैं, प्रिवेंटिव इन नेचर. अब हम क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं. द प्रोविजंस ऑफ, यहाँ ब्लैंक दिया गया है, यहाँ हमें भरना है. डू नॉट अप्लाई टू ट्रेड यूनियंस रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926. ऑप्शन ए है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, बी द कंपनीज एक्ट 1956, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नॉर बी. इसका सी ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी. यहाँ हम भरेंगे बी. हम क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं. अकॉर्डिंग टू सालमंड एवरी लीगल राइट ए कैन नॉट बी वेस्टेड इन ए पर्सन, बी इज अवेल्ड अगेंस्ट ए पर्सन अपॉन हुम लाइज द correlative duty, C cannot oblige the person bound to an act or omission in favor of the person entitled, D cannot have a title. इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इज अवेल्ड अगेंस्ट ए पर्सन अपॉन whom lies correlative duty. अब क्वेश्चन नंबर 30 पे हम आते हैं.
The binding force of precedent is destroyed or weakened by. ऑप्शन ए है पब्लिक ओपिनियन, बी abrogated decision, सी रेस जुडिकेटा, डी लिस पेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 30 के ऑप्शन बी सही है, एब्रोगेटेड डिसीजन। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ ए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट विच डज नॉट कन्फर्म टू प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 299 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके ऑप्शंस हैं दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट अगेंस्ट द पार्टी, बी दे कैन बी rectified by the government, C both and A and B, D neither A nor B। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट अगेंस्ट द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 32 पे हम आते हैं। स्टेट बार काउंसिल अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 हैज द अथॉरिटी टू reprimand the advocate, B suspend the advocate from practice for such period of time as it may be deemed fit, C remove the name of the advocate from the state roll of advocates, all of these। इसका ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ दी, यानी ए बी सी तीनों सही। अब क्वेश्चन नंबर 33 पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन टू बी एडमिटेड ऑन द स्टेट रोल्स मेंटेन बाय स्टेट बार काउंसिल, द मिनिमम एज ऑफ रिक्वायरमेंट इज 21 ईयर्स। बी ऑप्शन में है ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, ऑप्शन सी है ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड ऑन एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग moral turpitude, D they must not have been convicted of an offence under the provisions of Untouchability Offences Act 1958। 33 का बी सही है, he must be an Indian citizen। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। टाइम विच हैज़ बिगन टू रन कैन बी स्टॉप्ड इन केस ऑफ ऑप्शन ए माइनॉरिटी, ऑप्शन बी इंसैनिटी, सी आईडीओसी, नन ऑफ द एबव। सेक्शन नंबर इसके ऑप्शंस डी सही हैं, नन ऑफ द एबव, यानी इसमें से कोई भी सही नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। इफ़ एन इंस्ट्रूमेंट में बी कंस्टिट्यूट आइदर एज प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, इट इज़ ए वैलिड इंस्ट्रूमेंट, बी एन एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट, सी ए रिटर्नेबल इंस्ट्रूमेंट, नन ऑफ द एबव। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एन एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। हाउ इज़ द नेट वर्थ ऑफ ए फॉरेन कंपनी कैलकुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका ऑप्शंस है ए में द नेट वर्थ विल बी कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, बी इट शैल बी calculated as per section 197 of the Companies Act 2013, C it shall be calculated as per section 197 and section 381 of the Companies Act 2013, D it shall be calculated as per section 198 and section 381 of Companies Act 2013।
इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इट शैल बी कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 198 एंड सेक्शन 381 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 37 पे हम आते हैं। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, evil should be returned by evil. This theory is called the option A reformative theory, B deterrent theory, C preventive theory, D retributive theory। इसका डी ऑप्शन सही है, जो कि लिखा गया है डिटरेंट प्रिवेंटिव थ्योरी। डी ऑप्शन सही है, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। 38 क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी टेकन बाय ए रजिस्टर अंडर सेक्शन 4(5) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। 38 का ऑप्शन नंबर बी सही। तो हमको 38 क्वेश्चन दिया ही नहीं, पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन 38 क्वेश्चन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी टेकन बाय रजिस्टर अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 5 ऑफ द करेक्टिव कंपनीज एक्ट 2013। He can direct the company to change its name within a period of 6 months after passing an ordinary resolution। ऑप्शन बी में है टेक एक्शन फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ऑप्शन सी में है ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ऑन हिज ओन अकॉर्ड। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इसके बी ऑप्शन सही है, टेक एक्शन फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ एंड नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। अब क्वेश्चन नंबर 39 पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। ऑप्शन ए में है रेलवे बोर्ड एंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बी में है जुडिशियरी, सी में यूनिवर्सिटी, ऑल ऑफ दी एबव। इसका डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दी एबव। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। द वर्ड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन आर्टिकल 21 मीन्स दैट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मस्ट बी फॉलोड। ऑप्शन बी में है प्रोसीजर लेड डाउन और इनैक्टेड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ऑप्शन सी में है द सेम थिंग एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ऑप्शन डी में है ए लॉ विच इज़ रीजनेबल जस्ट एंड फेयर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 के ऑप्शन डी सही है, ए लॉ विच इज़ रीजनेबल जस्ट एंड फेयर। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। ऑब्जेक्शन एज टू नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज अंडर ऑर्डर 1 रूल 13 ऑफ CPC। ऑप्शन ए है कैन बी टेकन एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स। ऑप्शन बी है शुड बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी और शैल बी इनवैलिड। ऑप्शन सी कैन बी टेकन इन अपील और रिवीजन फॉर द फर्स्ट टाइम। डी आइदर ए और सी। 41 के ऑप्शन बी सही हैं, शुड बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी और शैल बी इनवैलिड। और हम क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ स्यूइंग। ऑप्शन ए कैन ओनली बी टेकन बिफोर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन बी कैन ऑल्सो बी टेकन बिफोर द अपीलेट कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑप्शन सी कैन ऑल्सो बी टेकन बिफोर द कोर्ट ऑफ रिवीजन फॉर द फर्स्ट टाइम।
डी में है ऑल ऑफ दी एबव। अब 42 के ऑप्शन ए सही है, कैन ओनली बी टेकन बिफोर द कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। तो हम क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। ऑन द रिटायरमेंट, रिमूवल और डेथ ऑफ ए नेक्स्ट फ्रेंड अंडर ऑर्डर 32 रूल 10 of the CPC, the suit is liable to be A. stayed, B. dismissed, C. rejected, D. either A, B or C। 43 का ऑप्शन ए सही है, जो कि लिखा गया स्टेट। अब क्वेश्चन नंबर 44 पे हम आते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथोरिटीज हैज़ द पावर टू ब्लॉक वेबसाइट्स CERT, IN, MC, IIPC, C, DAC, D, मिनिस्ट्री ऑफ IT। इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है, CERT, IN। अब हम क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल under all circumstances, be available when there is time to have the recourse to the protection of public authority, C, available when there is no time to have recourse of public authority, all of the above section। इसके आंसर हैं C, available when there is no time to have recourse of public authority। Question number 46, which of the following can be considered retrenchment under the provisions of the Industrial Dispute Act 1947? Option A, termination due to ill health, B, abandonment of job by an employee, C, termination on account of reaching the age of superannuation, D, none of the above। क्वेश्चन नंबर 46 के ऑप्शन डी सही है, नन ऑफ दीज। अब हम क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू रिगार्डिंग इम्प्रिजनमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 ऑफ द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986? It may be extend to 1 year, B, it may be extend to 2 years, C, it may be extend to 6 months, it may be extend to 1 month। 47 के ऑप्शन डी सही है, it may be extend to 1 month। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। onus to prove reasonable excuse for withdrawal from the society of the other is on। तो इसके ऑप्शन हैं पेटिशनर, बी रेस्पोंडेंट, सी बोथ ए एंड बी, डी आइदर ए और बी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रेस्पोंडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। ए प्रोक्लेम्ड पर्सन हुज प्रॉपर्टी हैज़ बीन अटैच्ड कैन क्लेम द प्रॉपर्टी or the safe proceeds on appearance। Option A, within 6 months of attachment, B, within 2 years of attachment, C, within 3 years of attachment, D, within 1 year of attachment। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, within 2 years of attachment। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम आते हैं। द क्वेश्चन whether a statement was recorded in the course of investigation is A, option A, question of law, B, question of fact, C, mixed question of law and fact, D, question of law or of fact depends on facts and circumstances। क्वेश्चन नंबर 50 के बी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट।